Hello and welcome back, dear children, to the Knowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing book 7. This is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So children, today we are going to start chapter number 6 of Civics and the name of the chapter is Understanding Media. So here you can see there's an activity given. Can you give this diagram a title? क्या आप इस diagram को कोई title दे सकते हैं? What do you understand about the link between media and big businesses from this diagram? So इस diagram को देख के आपको media और big businesses के बारे में क्या समझ में आता है? Here the picture is big business houses. Some own radio, TV, newspaper. Advertise their products, promote products through advertisements. Readers, viewers, listeners are here, and these readers, viewers, listeners, these people buy products seen in the media. Money, therefore, flows back to big business houses. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि big business houses ने कुछ advertisement, radio channels को, TV news को टीवी को, न्यूज़पेपर्स को ओन कर लिया है. वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं. इसमें लोग इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं और फिर वो इन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं. सो यू हैव टू गिव अ सुटेबल टाइटल. कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मिंग इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज between two or more individuals with the purpose of building an understanding. When communication is undertaken on a one-to-one basis on the forms of letters, telephone, email, etc., it is termed as personal communication. So communication एक two-way process है. मतलब अगर हमने किसी से कुछ बात बोली है उसके रिगार्डिंग कुछ जो है आप कह सकते हो कि जो है कुछ रिप्लाई आया है उस पर्सन का, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज. सो हम अपने थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज को इसमें शेयर करते हैं. बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, हो सकते हैं दो लोग भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं. विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिससे कम्युनिकेशन से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है. When communication is taken on one-to-one basis in the forms of letters, telephone, email, etc., it is termed as personal communication. जब communication जो है one-to-one होती है, चाहे वो लेटर के फॉर्म में हो, टेलीफोन के फॉर्म में हो, ईमेल के फॉर्म में हो, मतलब हम किसी को पर्सनली कुछ चीज भेजते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. What is media? When communication is between many, इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. जब कम्युनिकेशन जो है बहुत सारे लोगों के बीच में होता है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं. टुगेदर दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मीडिया, और एक साथ इन्हें मीडिया कहा जाता है. मीडिया कम्युनिकेशन रिफर्स टू द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट इन द सोसाइटी. ये जो मीडिया कम्युनिकेशन है ये डिफरेंट वेज को बताता है जिसमें कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं सोसाइटी से. इट कैन बी थ्रू मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, रेडियो, टीवी, बिलबोर्ड्स, posters, the internet, letter, public addresses, etc. So ये सारे फॉर्म है जिससे हम अपनी चीजों को, अपने जो भी थॉट्स है उसे पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं. दिस इज कॉल्ड मीडिया. What is media and technology? When the passage of time, with the passage of time, technology changes. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जा रही है. जोहानेस गुटेनबर्ग Johannes Gutenberg's invention of the printing press in 1453 brought about the print revolution. जिसके बाद print revolution आया, जैसे printing press invent हुआ. Vast information was now readily available to print books. अब बहुत सारी information थी जिससे जो है अब print किया जा सकता था. Initially the cost of printing was very high. पहले जो cost of printing था वो बहुत ज़्यादा high था, making it inaccessible to the mass of the next couple of centuries. So next couple of centuries जो थी वहाँ पे इन्हें
ये एक्सेसिबल नहीं था. It was only in the 19th century when newspaper came to be printed. So 19th century में ये revolution आगे बढ़ा जब जाके न्यूज़पेपर को प्रिंट किया जा सकता था. That information became easily available and gradually became the part of the morning rituals for most people across the globe. So जैसे ही न्यूज़पेपर एग्जिस्टेंस में आया, लोगों का एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया, उनके मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग रिचुअल्स में आ गया. हर कोई सुबह उठ के अखबार पढ़ने लगा और ये ऐसी चीज़ है जिसमें हर जगह की हर टाइप की न्यूज़ आपको मिलेगी, चाहे देश विदेश की हो या आपके लोकल न्यूज़. सो हर टाइप की न्यूज़ आपको एक ही जगह मिल रही थी. सो इट वॉज अ पार्ट ऑफ पीपल्स डेली रूटीन. नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया? On the basis of technology use, mass media came to be classified as print media and electronic media. So टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो मास मीडिया है उससे क्लासिफाई किया जाने लगा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, मास मीडिया केम टू बी क्लासिफाइड एज प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो मीडिया था उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. एक था प्रिंट मीडिया और जो दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. नाउ लेट्स लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि प्रिंट मीडिया तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. The growth of electronic media has brought lots of changes in the quality of images and sound. So जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जो इमेजेस की क्वालिटी थी वो चेंज हो गई और साउंड्स भी आ गए. It has also became a popular method of expression of public opinion. और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड बन गया जिससे पब्लिक एक्सप्रेशंस या पब्लिक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जा सकता था. It reaches the public faster and even the illiterate people get a lot of benefit. लोगों तक ये जल्दी पहुंचने लगा और लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगे out of this media. इस मीडिया से the media is able to bring forth the truth of the public. So ये जो मीडिया है ये लोगों की जो भी ट्रुथ है उसे बाहर निकाल लाती है. It covers the injustice done to the people, corrupt actions of politicians and many sensational kind of information which read the public in no time. So ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अब इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे जो टेलीविजन सेट्स हैं वहां तक आने लगे. The opinion of the public are also telecasted, which at times help the politicians to change the decisions also. So जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी चेंज होने लगा और वो टेलीकास्ट होने लगा इन न्यूज चैनल्स पे. जो भी न्यूज देते थे उसके लिए पब्लिक ओपिनियन मांगा जाता था. जो भी पॉलिटिशियंस का डिसीजन था उसके लिए पब्लिक ओपिनियन मांगे जाने लगा लोगों से. सो वो भी यहाँ टेलीकास्ट होती है जिससे जो है पॉलिटिशियंस अपने डिसीजंस को चेंज कर देते हैं. नाउ ये इज द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Now let's learn about the print media. The press is usually called the print media. Press को ही हम print media कहते हैं जहाँ न्यूज़पेपर से मैगजीन्स छपते हैं. Which is strong political weapon and a pillar of democracy. So democracy का एक pillar है और इसमें जो है strong political weapon भी है. Print media has different forms. Print media के अलग अलग forms हैं like magazines, journals, newsletters and books. So ये सारी चीजें जो है प्रिंट मीडिया के अंदर आती हैं. It helps to make us aware of the events and incidents across the border. ये हमें हर एक इवेंट्स और इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. The press is expected to report event correctly and without any bias. So जो प्रेस होता है उससे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बिना किसी भेदभाव के जो भी रिपोर्ट्स है उसे प्रिंट करें. Sometimes even the press is compelled to write certain things by force. कई बार ऐसा होता है कि प्रेस को भी फोर्स किया जाता है कि वो कुछ चीजों को लिखे. कैसे? उन्हें फोर्स किया जाता है उस चीज के लिए. The freedom of press must not be curbed by anybody or any agency. जो फ्रीडम है प्रेस का उसे जो है किसी भी पर्सन को या किसी भी एजेंसी को दबाना नहीं चाहिए. The newspaper is an important medium which brings all kind of information to the public. और न्यूज़पेपर एक ऐसा मीडियम है जो पब्लिक को हर तरीके की इंफॉर्मेशन देती है. Now
Let's learn about the media expenses. अब क्या क्या expenses हैं? The technology that mass media uses keeps changing continuously. So जो भी technology ये mass media use कर रहा है वो time to time change होता रहता है. As more advancements are made, जैसे जैसे advancement बढ़ते जा रहे हैं, the different technologies that mass media uses are expensive. जो भी टेक्नोलॉजी ये मास मीडिया यूज कर रही है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है. Just think about a TV studio in which the news reader sits. So बस आप अभी उस न्यूज स्टूडियो के बारे में सोचो जहाँ पे एक न्यूज एंकर बैठ के न्यूज पढ़ता है. It has lights, camera, sound, recorder, transmission, satellites, etc. ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं. And all of which cost a lot of money. और ये सारी चीजें बहुत सारे पैसे इसमें खर्च होते हैं. Here you can see a cameraman pursuing a movie. Cameraman is shooting a movie scene. In the news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also the number of people who help put the broadcast together. बहुत सारे लोग हैं जो broadcast को जो चलाने में जिनका योगदान है. This includes those who look after the cameras and light. जो कैमरा लाइट का ध्यान रख रहे हैं उनको भी पेमेंट जाती है. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. So, latest technology को अपनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. So, अपने वर्क को करने के लिए मास मीडिया को बहुत सारे पैसे चाहिए. As a result, most television channels and newspapers are part of big business house. और इसीलिए बड़े जो बिजनेस हाउस है उनके ये पार्ट होते हैं. मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी. सो मास मीडिया जो है बहुत सारे वेज को जो है सोचती है जिससे वो पैसे कमा सकती है. On one way is in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phone, etc. So एक तरीका पैसे कमाने का है कुछ एडवर्टीजमेंट्स करना, कुछ बिजनेस कंपनीज के एडवर्टीजमेंट्स को करना, जैसे कि कार का एडवर्टीजमेंट हो गया या चॉकलेट का या क्लोथ्स का या फिर मोबाइल फोन का. यू मस्ट हैव नोटिस्ड द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स दैट यू हैव सीन व्हाइल वाचिंग योर टेलीविजन फेवरेट टेलीविजन शो. आपने देखा होगा कि जब आप टीवी देखते हो, अपना फेवरेट शो देखते हो, उस समय कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. व्हाइल वाचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टीजमेंट्स आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर. हर ओवर के बीच में सेम एडवर्टीजमेंट को बार बार दिखाया जाता है जब आप क्रिकेट मैच देखते हो. एंड सो आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन. और हम उसी चीज को बार बार देखते रहते हैं. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. So advertisement किस लिए किए जाते हैं कि आप जो एक बार जरूर उठोगे और उस प्रोडक्ट को खरीद के आओगे जिसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है. ये you can see an advertisement of a two-wheeler. Two-wheeler का एक एडवर्टीजमेंट है जो आपको दिखाई दे रहा है. The most popular form of earning revenue in the media is through advertisement. जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है अर्निंग का रेवेन्यू वो है मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना. The purpose of advertisement is to influence the audience and encourage them to buy the product and price. So इसका जो मेन पर्पस है इस एडवर्टीजमेंट का वो ये है कि लोगों को बोला जाए कि वो जाके प्रोडक्ट्स को खरीदें. सो लोगों को इतना एनकरेज कर दो कि वो जाके प्रोडक्ट्स को खरीदें. द कंपनीज दैट एडवर्टाइज द प्रोडक्ट पे रेवेन्यू टू द टीवी चैनल. सो ये जो कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं वो जो है रेवेन्यू देते हैं टीवी चैनल्स को. द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. सो यही सेम चीज रेडियो और न्यूज़पेपर में भी होती है. Now, what is the role of media in democracy? So, media का क्या रोल है डेमोक्रेसी में? It is often said that the media is a storehouse of information in a democracy. So, ये अक्सर कहा जाता है कि जो मीडिया है वो एक स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का. And the media cannot function independently of the government. मीडिया गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकती. The government cannot function properly without the media. Government भी बिना मीडिया के वर्क नहीं कर सकती. It is through the media that we come to know about the issues related to the functioning of the government. मीडिया से ही हमें पता चल जाता है कि गवर्नमेंट को
कि क्या क्या इश्यूज हैं गवर्नमेंट के फंक्शनिंग से रिलेटेड. डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेसी जो है पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल पे चलती है. द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी. और जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में. इट हैज अ कैपेसिटी टू क्रिएट एन इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन. सो इसकी जो कैपेसिटी है, इसके पास कैपेसिटी है इन्फॉर्म्ड ओपिनियन को क्रिएट करने की. इट एनलाइटन्स एंड एम्पावर्स द पीपल. ये लोगों को एनलाइटन करता है, एम्पावर करता है, जागरूक करता है. It is essential that people have access to information for the healthy functioning of the democracy. So अपने डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है कि लोगों के पास ये मीडिया होना चाहिए. Access to information ensures that citizens make responsible informed choices rather than acting out the ignorance. So information का एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिटीजन्स के लिए, ताकि ये चीज़ें इन्हें रिस्पॉन्सिबल बना सके, इन्फॉर्म्ड बना सके, क्या क्या चॉइसेस इन्हें करनी है, एंड ये मिस इन्फॉर्मेशन से बच सके. नाउ सेकेंडली, इंफॉर्मेशन ऑल्सो सर्व्स एज द चेक ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ये जो इंफॉर्मेशन है ये जो है सर्व करता है एज अ चेक ऑन इलेक्टेड representatives. It ensures that these representatives work towards the aspiration of the people. ये ensure करता है कि जो भी ये representatives हैं ये work करें towards the aspiration of the people who have elected them. उनकी तरफ जो जिन लोगों ने इन्हें elect किया है. It is providing the information through the media play an important role. सो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट enables the citizens to voice their opinion against unfavorable government policies through the media. सो ये जो इंफॉर्मेशन को जो हम एक्सेस करते हैं वो हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग में गवर्नमेंट की, जिससे जो इनेबल करता है सिटीजन्स की, दैट इनेबल्स द सिटीजन्स टू वॉइस देयर ओपिनियन. जो सिटीजन्स को एनेबल करता है अपने ओपिनियन को वॉइस करने के लिए. अगेंस्ट अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू द मीडिया. जो अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ. द मीडिया प्रमोट्स डेमोक्रेसी बाय एजुकेटिंग वोटर्स, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी एंड ensuring that governments are transparent as well as accountable to the people. सो मीडिया जो है इन सारी बातों पे का ध्यान रखता है कि वोटर्स को एजुकेट किया जाए कि क्या उनके लिए सही है या नहीं, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कम्युनल हार्मनी को प्रोटेक्ट करना, और इस बात का ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल है लोगों के लिए. देयर आर नियरली 3.5 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स. सो टोटल जो है यहाँ पे 3.5 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, and every 6.4 seconds of a new account has been created. और हर जो है 6.4 सेकेंड में एक नया अकाउंट बनता है यहाँ पे. every user has an average of 7.6 सोशल मीडिया अकाउंट्स. और हर यूजर के पास जो है एवरेज अगर निकाला जाए तो 7.6 सोशल मीडिया अकाउंट्स. They spend around 142 minutes on social media every single day. और ये जो लोग हैं ये टोटल 142 मिनट्स जो है एज एन एवरेज जो है स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे. कीपिंग द अबव ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द मीडिया प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सोसाइटी. सो ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़ा था उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो हम देख सकते हैं कि मीडिया जो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है सोसाइटी में. इट शुड प्रोवाइड बैलेंस रिपोर्ट विदाउट बीइंग बायस्ड ऑन एनी इशू. सो ये जो है बैलेंस रिपोर्ट्स जो है प्रोवाइड करती है बिना बायस व भेदभाव के. A balanced report covers all the perspectives of the story or issues in a rational manner. जो बैलेंस रिपोर्ट है ये कवर करते हैं जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं स्टोरी के, उसे एक प्रॉपर रैशनल मैनर में प्रेजेंट करते हैं विदाउट फोर्सिंग इट्स ओपिनियन ऑन द रीडर्स और व्यूअर्स.
बिना अपने ओपिनियन को रीडर्स पे फोर्स किए. The report coverage should be such that the reporter should be able to form his or her own opinion. So ये जो रिपोर्ट की कवरेज है ऐसी होनी चाहिए कि जो रिपोर्टर है वो अपने ओपिनियन को भी यहाँ पे शेयर कर सके. The media can give a balanced report only when it is independent. मीडिया अपनी जो है बैलेंस रिपोर्ट सिर्फ तभी दे सकती है जब वो इंडिपेंडेंट है. इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबॉडी. मीडिया जो है किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं होनी चाहिए. इन द कवरेज ऑफ इट्स न्यूज, अपने न्यूज कवरेज के टाइम वो किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं होनी चाहिए. इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज लॉ इंश्योर फ्रीडम टू द प्रेस टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज है उसमें जो लॉ है वो फ्रीडम देता है काफी बड़े एक्सटेंट पे. इट एनेबल्स द मीडिया एंड द सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये हेल्प करता है सिटीजन्स को ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और गवर्नमेंट ऑन जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनके पास आ सके. द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 2005 is an act of parliament which allows private citizens to request information from a public authority. So public authority से private जो citizens हैं वो कोई सी भी तरीके की information ले सकते हैं. We come across news events which are covered differently in various newspapers. So बहुत सारे ऐसे news events हैं जिसके across आते हैं जो अलग अलग newspapers में cover किए जाते हैं. Each newspaper tends to project the same news event from an angle which is different from that of the other. हर एक न्यूज़पेपर जो है वो tends to project the same news. वो एक ही न्यूज़ को जो है प्रोजेक्ट करता है हर एक एंगल से. Thus, the media appears to be independent to cover a news event in its any way that it feel is appropriate. So media जो किसी भी वे में न्यूज़ को जो हम तक ट्रांसफर कर सकते हैं जो उसे सही लगता है. But in reality, the media is not completely independent. लेकिन reality अगर देखी जाए तो हमारी media जो है पूरी तरह से independent नहीं है. The reason for this are as follows. Control of government on the media, that is the government imposes censorship on the media. So government का control होता है media पे, इसका मतलब कि government जो है censorship को impose करती है media पे. Influence of the people who own the media houses. So, उन लोगों का इन्फ्लुएंस होता है मीडिया पे जो इन हाउसेस को ओनर होते हैं. The government uses censorship to control the content published in the media. So, गवर्नमेंट के पास सेंसरशिप अधिकार होता है जिससे वो जो भी कंटेंट पब्लिश हो रहा है मीडिया में उसे कंट्रोल कर सकती है. The government can censor any form of media including films if it violates national security. So, गवर्नमेंट किसी भी तरीके की न्यूज़ को जो है सेंसर कर सकती है जैसे वो फिल्मों को करती है. ऐसी कोई भी चीज जो नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट कर रहे हैं. पोर्ट्रेज वुमेन इन अ मैनर दैट आउटरेजेस द मोडेस्टी. सो वुमेन को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जो मोडेस्टी के खिलाफ हो. एंड इनसाइट्स हेट अगेंस्ट अ कम्युनिटी. और किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट को अगर वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी सेंसरशिप अलाउड है. व्हेन सिटीजंस being more active and vigilant, the media coverage of news is becoming more independent on the governments now. अब जब citizens जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, विजिलेंट हो जाते हैं किसी भी एक खबर को लेके, तो जो मीडिया का कवरेज होता है न्यूज़ का वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है. And now children, let's learn about media ethics and accountability. मीडिया के क्या क्या ethics है और accountability. The main aim of media is to give people information on matters of public interest. So जो main aim है मीडिया का वो है लोगों को information देना different matters पे. The media should present such information correctly. मीडिया को ऐसी information correctly देनी चाहिए. Decently and on an unbiased manner. So ये जो information है वो एक unbiased manner में होना चाहिए. To do this, the media must follow a code of ethics. और इसे करने के लिए मीडिया को कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है. इन इंडिया द मीडिया फॉर्म्स देयर ओन कोड ऑफ एथिक्स. इंडिया में मीडिया जो है अपने खुद के कोड ऑफ एथिक्स को फॉर्म करती है. बट द गवर्नमेंट में ऑर्डर द रिमूवल ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ बुक्स, मूवीज एक्सेट्रा. लेकिन जो गवर्नमेंट है जो कई पार्ट्स हैं रिमूव कर सकती है कुछ पार्ट्स बुक्स का या मूवीज का
which is considered offensive, immoral or politically dangerous. So ऐसे पार्ट्स को जो है गवर्नमेंट हटा सकती है इन बुक से या फिर मैगजीन से या फिर मूवीज से जो ऑफेंसिव कंसिडर किए जाते हैं, जो इमोरटल कंसिडर किए जाते हैं या फिर जो पॉलिटिकली डेंजरस हो. In other words, the government will censor books, movies, etc. So government के पास ये अधिकार है कि वो बुक्स और मूवीज को भी सेंसर कर सकती है. Usually the following principles are included in the code of media ethics. So यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो फॉलो किए जाते हैं मीडिया एथिक्स में. मेंटेनिंग एक्यूरेसी एंड फेयरनेस. सो एक्यूरेसी और फेयरनेस को मेंटेन करना ही मीडिया का काम है. The media should not publish or broadcast information that is incorrect or misleading or distorted. So media ऐसी information को प्रेजेंट नहीं कर सकती जो incorrect हो या misleading हो. And all the different views on an issue should be presented. जो भी जिसके व्यूज हैं उसे प्रेजेंट वो कर सकता है किसी भी इशू पे हो. एंड नो पर्टिकुलर व्यू शुड बी फेवर, और किसी के भी व्यूज को फेवर नहीं किया जाए. प्रेफरेबली इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइड बिफोर इट इज मेड पब्लिक. सो पब्लिक किसी भी न्यूज को पब्लिक करने से पहले उसे अच्छे से वेरीफाई किया जाए. Especially if it is likely to arouse ill feeling between communities or damage somebody's reputation. Especially तब जब वो न्यूज किसी कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है या किसी के रेपुटेशन को खराब कर सकता है. सो ऐसे जो भी न्यूज है उसे पहले चेक किया जाए, फिर उसके बाद ही पब्लिक किया जाए. Now the next point is respecting people's privacy. लोगों की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट करना है यहाँ पे. The media should respect people's privacy. मीडिया को लोगों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. A person's identity and details about his or her family, personal life, religion, caste, etc. So किसी भी इंसान की आइडेंटिटी बताना, उसकी फैमिली के बारे में बताना, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना, रिलीजन या कास्ट के बारे में बताना should not be made known unless it is necessary to do in the interest of the public. So लोगों की मर्जी होगी तो ही आप कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो हमें ये सारी चीजें नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए. एनीथिंग सेड बाय अ पर्सन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड विदाउट द स्पीकर्स नॉलेज एंड अप्रूवल अनलेस इट इज नेसेसरी टू डू सो ऑन लीगल ग्राउंड्स और फॉर सम अदर गुड रीजंस. सो अगर किसी पर्सन ने किसी तरीके की कोई बात बोली है तो उसे जो है रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक जो है अप्रूवल ना मिल जाए एंड जब तक जो है जरूरी ना हो कोई लीगल एक्शन लेने के लिए उस पर्सन के खिलाफ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द सोसाइटी. सो जो नेशन है या जो सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखें. द मीडिया शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल प्रेजेंटिंग एनी न्यूज ऑफ और इंफॉर्मेशन दैट मे थ्रेटन द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन. सो मीडिया को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि वो जो भी न्यूज है या जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है ऐसी न्यूज जो थ्रेटन कर रही किसी को, किसी की सिक्योरिटी के बारे में या यूनिटी, जो नेशन की यूनिटी है उसके बारे में अगर कोई ऐसी न्यूज है या ऐसी न्यूज जो सोसाइटी को हार्म कर रही है, तो ऐसी न्यूज को पब्लिश करने से पहले बहुत जो है सोच विचार करना चाहिए. For example, information on dispute between religious, racial and cultural groups should be verified before being made a public. So किसी भी ऐसी न्यूज को पहले वेरीफाई करें, उसके बाद उसे पब्लिश करें. Such information should be presented in such a way that it does not cause violent reaction. So अगर ऐसी कोई information है आपके पास अंडर जैसे लिखी हुई information है, अगर ऐसी कोई information है तो उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि लोगों का रिएक्शन बहुत ज्यादा violent now. Now children, let's learn the next point, correcting errors and allowing replies. So when an error is detected in any information, मान लो कि कोई information है वो दी गई और उसमें कोई गलती निकलती है given by the media, the media should promptly publish or broadcast the correct version and apologize for the mistake. So मान लो कि कोई ऐसी गलती निकल आती है जो मीडिया ने गलती से दे दिया है, तो ऐसी चीजों को जो है मीडिया को तुरंत उसके बारे में अपोलोजाइज करना चाहिए और जो करेक्ट न्यूज है वो देनी चाहिए. Person who disagree with anything published or broadcasted in the media should be given a fair chance to publish or broadcast their views. So ऐसे लोग जो डिसएग्री करते हैं किसी भी चीज से
published or broadcasted in the media. जो ऐसी चीज जो मीडिया में पब्लिश की गई है, ब्रॉडकास्ट की गई है, उन्हें जो है गिवन अ फेयर चांस टू पब्लिश, उन्हें जो है फेयर चांस मिलना चाहिए ताकि वो उस न्यूज को, करेक्ट न्यूज को पब्लिश कर सकें, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने न्यूज में. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ मीडिया? मीडिया इज क्रिटिकल फॉर अ डेमोक्रेसी. इट नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड ऑलवेज फॉर्म एन इन्फ्लुएंस ऑफ बिग बिजनेस हाउस. सो मीडिया जो है क्रिटिकल है डेमोक्रेसी के लिए और इसे जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि ये जो बिग बिजनेस हाउसेस है उनकी इन्फ्लुएंस से दूर रह सके. द गवर्नमेंट शुड नॉट ट्राई टू इम्पोज सेंसरशिप ऑन इट. गवर्नमेंट को इस पे सेंसरशिप नहीं लगानी चाहिए. At the same time, it is important for the readers and viewers to understand and evaluate the news and opinion presented by the media partially. So, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो लोग हैं या जो रीडर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत ही ध्यान से न्यूज़ देखनी चाहिए और एकदम से ही इवेल्युएट नहीं कर देना चाहिए न्यूज़ को. मोर ओवर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वेदर प्रिंट, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, रेडियो और वेब हैव टू बी मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. दूसरी तरफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को चाहे किसी भी तरीके की न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए लोगों की तरफ. They should ensure that professional integrity is not compromised on account of sensationalism. So उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. A free press is a blessing for a public. अगर एक प्रेस फ्री है तो इसका मतलब वो लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है. But if it stakeholders are not giving vigilant, this blessing can be misused. लेकिन अगर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उसे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं या if they are not vigilant, क्या होगा, ये जो blessing है ये misuse की जा सकती है. Now children, let's revise what we have learned. Media refers to the various means of mass communication. Radio, TV and the internet are electronic media, while newspaper, magazine, journals, etc. are print media. मास मीडिया reaches out to large number of people. मास मीडिया जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंचता है. The media earns its revenue through advertisement. और मीडिया अपनी रेवेन्यू को एडवर्टीजमेंट के थ्रू कमाती है. By and large, the media is independent in most democracies. Yet governments can impose censorship on it for a large cost. The media helps in forming public opinions and taking decisions. Thus, it must remain independent in a democracy. The media should render fair and balanced report without any prejudice. And it is important that the people critically evaluate media reports before arriving at any conclusion. Now, let's do the question answer. What role does the media play in a democracy? So, media ने कैसा role play किया democracy में, that you have to write. How is personal communication different from mass communication? In personal communication, we talk one-to-one to this person, or we can talk to more than two person. But in the mass communication, we can talk to the whole world at a time. What are the media for mass communication? Mass communication के लिए क्या क्या media है? Television, newspapers, radio. These are a part of mass communication. Why do you think the media covers issues selectively and sensibly? So आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मीडिया जो भी कवर करे उसे जो है selectively और sensibly select करना चाहिए? How does the media set the agenda for the society by choosing the events to be covered? So media जो है कैसे सेट कर सकती है किसी एजेंडा को, किसी सोसाइटी के लिए इवेंट्स को चूज करके? How is the media accountable to the society? मीडिया कैसे सोसाइटी के लिए अकाउंटेबल है? Do you think media in India plays a role with responsibility? आपको लगता है कि इंडिया में मीडिया जो है अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती है? So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it very well, and you have to complete the given exercises. I will be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.